بیچاری پریشان ہے. بیٹیوں کا حق مارنے والوں یاد رکھنا یہ بیٹیاں تیرے گھر کی رونق ہے, بیٹیاں تیرے گھر کی رحمت ہے, بیٹیاں تیرے گھر کی زینت ہے. بیٹیوں سے پیار کیا کرو, بیٹی اگر خوش ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمایا ہے تو بیٹیوں کا پورا پورا حق دیا کرو. لیکن آج حالات یہ ہو گئے اگر بیٹی ایک ڈسمل زمین مانگ لیتی ہے, اگر بیٹی ایک کٹھا زمین مانگ لے تو بیٹوں کے ناک چڑھ جاتے ہیں. سچی بتا رہا ہوں سرپنچ صاحب, آج حالات یہ ہے کہ بیٹا تو جتنا مانگے ایسا کبھی نہ کیا کرے. اگر باہر سے آیا کرے تو دونوں کے نظر پیار زیادہ دیا کرے, اور ہو سکے تو اگر 3 بیٹیاں ہو یا 1 بیٹا ہو گھر جا کر بیٹا کو پہلے نہ چوما کرے بلکہ پہلے بیٹی سے پیار کی باتیں کیا کرے. اگر بیٹی خوش ہو جائے گی تو انشاءاللہ مکین گنبد خضرا بھی راضی ہو جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. یہ دیکھیے یہ محمد مرشد عالم صاحب گھر روتارا ساس کے نام پہ دیا, سسور کے نام پہ. دیکھیے داماد ایسا ہونا چاہیے. ارے کچھ بھی ہو لیکن دیا نا سسور کے نام پہ دیا. یہاں تو لڑکا تو ماں باپ کے نام پہ نہیں دے رہا ہے. شفیق صاحب اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے نانا ماموں کا بھی گھر ہے مدرا ہے نا. یہاں سے ہم لوگ کے ابو لوگ لے کے بھی گئے ہوں گے چچا لوگ, لیکن اس کا بدلہ یہ لوگ وصول کیے. ہماری بہن بھی تو یہاں آئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. انہوں نے سسور کے نام پہ ان کے سسور کا مرڈر کسی نے کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. انہوں نے 501 ٹکا ہم کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے لبیک یا رسول اللہ. ارے بھائی آپ بولتے نہیں, عقیدہ یہ رکھیے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. وہ کسی کے لیے آئی فون اچھا ہوگا, کسی کے لیے لندن یورپ پھلا اچھا, لیکن ایک عاشق رسول کے لیے کیا اچھا ہے. عاشق رسول سب زبان کھولتا ہے, جب جب بولتا ہے تو یہی ارادہ لے کر بولتا ہے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جلسہ دستار بندی. اچھا یہ سارے نعرے جو لگ رہے ہیں اسٹیج ہی سے لگ رہے ہیں, مجمع سے ایک بھی نعرہ نہیں لگا ہے ابھی تک. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, ایک لڑکا کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا مجمع سے. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. ایک لڑکا کھڑا ہو کر نعرہ لگائے گا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے. جواب دیجئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد شیخ پورا بھی نہیں ہوا. زندہ باد آپ بہت اچھا پڑھیں. سرزمین مدراج رات کے جلسے میں آپ 1 نمبر پہ 2 نمبر پہ رہے. آواز دوبلے 1 نمبر پہ مولانا مسعود صاحب کی شاعری ہے. ارے بہت بڑے شاعر بھی ہیں, بہت بڑے شاعر. اللہ سلامت رکھے. ذرا ایک بار محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. بھائی آپ بولتے نہیں, ایک بار سبحان اللہ بولیں گے 90 نیکیاں ملتی ہے. کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں. سنیے میں یہ کہہ رہا تھا اگر دل کے اندر آئی لو محمد ہوگا جس کے, جو دل سے حضور سے پیار کرے گا, جس کی نس نس بولے نبی نبی, جس کی دھڑکن بولے گی نبی نبی, جس کا کلیجہ بولے گا نبی نبی, تو وہ دوسروں کا حق نہیں مار سکتا. لیکن آج حالات یہ ہو گئے کہ بیٹا تو ساری دولت آدمی لکھ دیتا ہے, لیکن بیٹی اگر ایک ڈسمل
है। बेटियां दुनिया में इज्जत, मरने के बाद बाप के लिए जन्नत हुआ करती है। मैं आपसे कहूंगा एक बात सिर्फ सुनकर बेटियों की कदर को समझने की कोशिश करें। हमने तो यहाँ तक देखा है बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन चार बेटे आपस में बंदर की तरह लड़ रहे हैं और कहते हैं ओ मोहल्ले वालों खबरदार, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक के जमीन का बंटवारा न हो जाए, जब तक के गाड़ी का हिस्सा न लग जाए, जब तक के मकान का बंटवारा न हो जाए। ये बेटों को हमने कहते सुना है, लेकिन क्या किसी ने अपनी बेटी को भी, किसी की बेटी को ये कहते सुना है कि मोहल्ले वालों मेरे बाप ने मुझे जमीन में हक नहीं दिया, इसका जनाजा नहीं उठेगा, मेरे बाप ने मुझे गाड़ी में हक नहीं दिया, इसका जनाजा नहीं उठेगा। क्या आपने किसी बेटी को कहते हुए सुना है? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन बेटी बाप का सम्मान करती है, बेटी तो बाप की इज्जत करती है, बेटी तो बाप के लिए गुरूर पूरा करती है। और सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, अरे जिनके बदन पे बुढ़ापे में भी अगर कपड़ा साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ देख लेना तो समझ जाना इनके घर में अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत अता फरमाया है। ये बेटियां होती है रात के 12 बजे चौक से उठ के गप मारकर और कैपेस्टिंग करके घर जाता है कोई बाप। रात के 12 बजे इस ठंड में अगर बेटी को मालूम है कि उसकी बेटी जवान है, मालूम है कि मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, मेरा बाप ठंडी सब्जी नहीं खाता है, तो अल्लाह की कसम कहता हूँ कि रात में अपने उस शख्स को, उस बूढ़े को कोई गर्म रोटी बना कर दे न दे, लेकिन जवान बेटी अगर होगी वो बाप को रात में गर्म रोटी भी बना कर देती है, गर्म सब्जी भी बना कर देती है। ये बेटियां जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे। अरे बेटियां ना बाप का गुरूर होती है। और एक बात इकबाल साहब, मैं सबों को नहीं जानता, अल्लाह सलामत सब बेटी करना हो सारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। एक बार बोलिए ना आप लोग आमीन। अल्लाह ताला हमारे उलमा किराम को भी एक साल में करोड़पति बना दे। देखिए इसमें जोर से नहीं बोलिएगा। अल्लाह ताला इतनी दौलत इन लोगों को एक साल में सारे इमाम साहब, मौलाना साहब, मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब एक साल में सब स्कॉर्पियो खरीद लेंगे। अच्छा नहीं बोल रहे, खरीद लेंगे तो क्या आप लोग का कुछ चला जाएगा? मोटरसाइकिल पे चले तो वो ठीक रहेगा? अपने रहबर कौम के रहबर की इज्जत करें। ये अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके बिगड़े कामों को बना देगा। जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं आखिरी ये बात कहूं बेटी के हवाले से, अरे बेटियां होती है ना, अगर किसी के घर में जनाजा पड़ा हो, बाहर रोने की आवाज अगर नहीं आ रही है तो समझ जाना इसको अल्लाह ने बेटी नहीं दिया है। और अगर बेटी है तो वो बेटियां तो वो होती है कि बेटे तो बाहर घूमते गए जनाजे को छोड़कर, उनका दिल तो बाजार में भी बहल जाता है। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं, हमने अपनी निगाह से देखा है, जब तक बाप के जनाजे के चारपाई से उस बेटी के हाथ को पकड़कर कोई अलग नहीं करता है, 24 नहीं 72 घंटे गुजर जाए, लेकिन वो बाप बेटी अपने बाप के जनाजे के करीब से हटने को तैयार नहीं होती है। ये बेटियां होती है। कभी मैं कहता हूँ अल्लाह का करम है इनायत बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। जिनको अपनी अपनी बेटी से प्यार है जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको भी बेटी से प्यार है, बेटी से प्यार करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बेटी के हवाले से, एक मर्तबा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। दिल का करार चैन है राहत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत
शक्ल में बेटी अता फरमाता है। हमने देखा है, लेकिन कभी मौलाना के चेहरे को आप ये नहीं देखेंगे चेहरा बिगड़ गया, बेटी पैदा हो गई। कुछ लोगों के दिमाग क्या है, कहेगा अरे फिर बेटी हो गई। कितनी जगह पे हमने तलाक होते देखा है, लोग कहते अब अगर बेटी हो गई ना तुझे तलाक दे दूंगा। मैं कहता हूँ तुम्हें किसी इंसान से नहीं, किसी रोबोट या मशीन से तुम्हें शादी करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हें बेटी दे रहा है तो तू उस बेटी के लिए नाक चढ़ा रहा है बेटी होने पे, उस बाप से जाकर पूछिए जिसको अल्लाह ने न बेटी दिया न बेटा दिया है। वो दुआ करता है मालिक हमें कुछ भी दे, लंगड़ी लूली औलाद ही दे दे, लेकिन औलाद दे दे, कम से कम मोहल्ले वाले हमें ताना बाज होने का तो नहीं मारेंगे, कम से कम इतना तो जरूर होता है। इसलिए कौम के नौजवानों बेटी पैदा हो। हुजूर फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो अगर बाप का चेहरा उतर जाए तो समझ लेना ईमान वाले का वो घर नहीं है, और अगर बेटी पैदा हो और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाना वो ईमान वाले का घर है। इसलिए दिल का करार चैन है राहत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। सुनिएगा लोग आज, पहले लोग अपनी बेटी को एक मर्तबा मारते थे, किसी तरह पहले एक बार में जमीन में गाड़ दिया, लेकिन आज हालात ये हैं वहां देखिए वो गुस्सा रहे आप बेटी को रखिए ना, बेटी तो गुरूर होती है बाप के लिए। जरा एक मर्तबा पूरा मलमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा आज हालात ये हो गए ना, लोग पहले एक बार अपनी बेटी को जिंदा कब्र में डाल देते थे, लेकिन आज रोजाना लोग ये कहकर अपनी बेटी के अरमान को मार दे रहे हैं कि अरे ढंग से रह ले, तू पराए घर जाने वाली है। पता नहीं सास ससुर के साथ क्या हालात करेंगे। खुदा के वास्ते कभी ऐसा न करना, बेटियों से प्यार करना, बेटियों की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। मुस्तफा फरमाते हैं जो अपनी बेटी से प्यार करेगा रोजे महशर सब लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस माँ बाप को तलाश करूंगा जिसने अपनी बेटी के साथ अच्छा सलूक किया होगा। ये हुजूर का फरमान है। सुनिएगा सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। उलमाए किराम जरा दुआओं से नवाजें। सुनिएगा जानते हैं वो रात में एक शायर साहब कह रहे थे हजरत ललिया का मजमा मुल्ला हसन की तरह खुश्क है। हाँ यानी साहब तो जामिद